दिन भर की तमाम खबरों के लिए हाजिर अपनी खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर को लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण को लेकर मतदान जारी है। 4 बजे तक बंगाल में करीब 70% मतदान हुआ है। 4 बजे तक असम की बात करें तो 62.36% वोटिंग यहां पर हुई। पूर्वी मिदनापुर, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, 72.38% मतदान हुआ है। झारग्राम से 72.10% मतदान की खबर। हालांकि पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हिंसा की भी खबर है। अब एक शव भी पाया गया जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हमारे पाले से था, ये बीजेपी का नेता था जिसे कि मार दिया गया। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी लोगों को डरा रही है, धमका रही है, घर से निकलने नहीं दे रही। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिला आज, क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन आज उसके ठीक उलट 11 बजे के बाद से बम्पर उछाल मतदान में देखने को मिली और फिर उसके बाद से ही जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ता चला गया और अच्छी खासी वोटिंग हुई है। शाम 4 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70% और असम में 62% मतदान करीब हुआ है। और इन तमाम जानकारियों के साथ एक और बड़ी खबर ये कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वोटिंग के बीच एक ऑडियो के वायरल होने से सियासी हड़कंप मच गया। दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी और बीजेपी के एक कार्यकर्ता का ऑडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। नंदीग्राम की सीट पर बीजेपी नेता प्रलय पॉल को ममता बनर्जी ने कथित रूप से चुनाव में मदद करने के लिए फोन किया था और अब इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी ने अपने नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से बीजेपी हमलावर हो गई है। दीदी को टाटा बाय बाय की नसीहत दे रही है। हालांकि इंडिया न्यूज लगातार ये बात कह रहा है कि इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कैलाश विजयवर्गीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑडियो सुनाया जाता है। दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी नेता प्रलय पॉल से मदद ममता बनर्जी ने मांगी थी और कहा था कि टीएमसी के पक्ष में अपने लोगों से वोट करवाइए। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি দিদি বলেছি এটা আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল? এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? না, উনি ওই পরিবার দিদি আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি। দীর্ঘদিন শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুই ভেবে দেখো। आपने ऑडियो सुना। इंडिया न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसके सामने आने के थोड़ी देर बाद बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस कथित ऑडियो को अपने मोबाइल के जरिए मीडिया को सुनाया।
আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে ১ সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোমযজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলছে, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারো ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা মানুষের কাজ করে? অনেস্ট বলে মনে করি। যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে আমাদের জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাবো? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে पहले चरण के लिए चुनाव शुरू हो चुका है और मतदान चल रहा है। हालांकि कम वक्त बचा है। पश्चिम बंगाल में 30 और असम में 47 सीटों पर मतदान बम्पर तरीके से सामने आया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति के लिए जानने के लिए मिदनापुर से रौनक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। रौनक, ये तो अच्छा खासा वोट प्रतिशत सामने आ रहा है। 4 बजे तक अगर 70% मतदान हुआ है तो मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर लोग घरों से निकले हैं, मतदान किया है। आप जहां पर मौजूद हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहा दिन भर। अभी लोगों की संख्या क्या है? देखिए, आज सुबह से ही देखा गया कि पूरा पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जो जगह है उस जगह में सुबह से ही 7 बजे के पहले ही लोग आ गए थे बूथ में वोट देने के लिए। अभी शाम हो चुका है और कुछ ही देर तक चलेगा वोटदान पर्व, मगर अभी भी बूथ में लोग आ रहे हैं वोट देने के लिए। जो दिखा जा रहा है कि पूर्व मेदिनीपुर का जो दृश्य है, ये दृश्य बोल रहा है कि जो पश्चिम बंगाल के बासिंदा है वो लोग चाहते हैं कि वोट देने के लिए, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं, घर से बाहर आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पहली दफा का जो वोटदान पर्व है, वो वोटदान पर्व पूरा बोल दिया कि बंगाल का आदमी का जो अंदर में था कि मैं खुद का वोट खुद देंगे, वो घटना आज घटा है। वो परसेंटेज ही बोल देता है। सुबह से मेदिनीपुर में थोड़ा बहुत हादसा हुआ है, विक्षिप्त कुछ घटना घटा है। एक जगह में सीपीएम लीडर के ऊपर अटैक हुआ है, एक जगह में इधर का जो पश्चिम मेदिनीपुर में बासिंदा के ऊपर जो ऊपर वो अटैक हुआ है। ये सब छोड़ के सारे दिन जो पूर्व में और पश्चिम मेदिनीपुर में जो परिस्थिति है वो स्थिति बोल देता है कि बंगाल का पहली दफा का निर्वाचन एकदम शांतिपूर्ण है। एकदम शांतिपूर्ण आप कह रहे हैं, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर। लेकिन रौनक, इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और बताया जा रहा है प्रणय पॉल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच का है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे जारी भी किया। हालांकि इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन रौनक, इस ऑडियो का क्या आप मिदनापुर जहां हैं वहां पर कुछ असर है? लोगों के बीच में सुगबुगाहट है इस बातचीत को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी जो ऑडियो वायरल हुआ है वो ऑडियो आज पहली दफा वोट चलने के टाइम में दोपहर तक वो ऑडियो वायरल हुआ है। इसीलिए सुबह से जो लोग वोट दे रहे हैं वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मगर
ये ऑडियो को लेके अभी राजनीतिक माहौल में एक चर्चा चल रहा है, क्योंकि ये ऑडियो जो है एक तरफ बीजेपी का तमलुक जिला सह सभापति है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो क्लेम कराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवाज है। ये ऑडियो स्पष्ट बोल दे रहा है कि ममता बनर्जी बोल रहे हैं, बीजेपी का जो सह सभापति है उसको बोल रहे हैं कि टीएमसी के लिए काम करने के लिए। ये घटना पहली दफा के अंदर जो घटना घटा, ये घटना जो राजनीति है, राजनीति में एक हादसा बनेगा ही, क्योंकि नेक्स्ट जो इलेक्शन है, सेकेंड दफा जो इलेक्शन है, ये सेकेंड दफा इलेक्शन ही है नंदीग्राम में। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। और कह सकते हैं रौनक, आज दिन भर की जो एक्टिविटीज रही हैं, जो घटनाक्रम रहा है, उसमें लग रहा है कि खेला तो खूब हो रहा है और इसी बीच एक दूसरे का खेल बिगाड़ने की कोशिश भी अलग अलग पार्टियों के जरिए हो रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती दिखी तो बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया। बहुत शुक्रिया रौनक, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वही खेला होबे और खेला शेष होबे के बीच पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग जारी है, लेकिन इस बीच तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी पर पूर्वी मेदिनीपुर की कांठी विधानसभा में हमला हुआ। सोमेंदु की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। गनीमत रही कि उस समय बीजेपी नेता सोमेंदु अधिकारी कार में नहीं थे। हालांकि चोट नहीं आई है उन्हें, ये राहत की बात है, लेकिन ड्राइवर की पिटाई की वजह से अब ड्राइवर को काफी चोट आई है। बीजेपी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया और इससे पहले सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था कि वोटर्स को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। तो बड़ी खबर इस दौरान की पहले चरण का मतदान चल रहा है, उस बीच सोमेंदु अधिकारी के ड्राइवर की पिटाई की जाती है, गाड़ी पर हमला किया जाता है। इस बीच टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत की गई और फिर उसके पलटवार में बीजेपी की तरफ से भी शिकायत की गई और कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से टीएमसी चुनाव होने नहीं दे रही। সঙ্গে কেউ নেই, রবীন্দ্রবাবু বলে ব্যাপার না, তিনি প্রার্থী ইলেকশন এজেন্ট প্রত্যেকটা বুথে যাবে। ইলেকশন এজেন্টের গাড়ি ইলেকশন কমিশন অনুমোদিত স্টিকার লাগানো থাকে, সেই গাড়ি যদি ইনজুর হয়ে থাকে, যে গুন্ডারা করেছে তাদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব ইলেকশন কমিশন। আর এগুলো যত করবে ভোট বাড়বে, সকাল থেকে শুধু পদ্ম ঝড় চলছে, এটার কোনো কারণ। उधर सोमेंदु के पिता शिशिर अधिकारी ने हमले के पीछे टीएमसी की गहरी साजिश बताई है। गाड़ी में हिट किया था, फाका में गाड़ी था और ग्लास टूट गया, ग्लास टूट के ड्राइवर का हाथ में लगा और कोई उसको उसके कार में कोई नहीं हाथ किया। वायलेंस वो लोग तो उधर लूट करता है, वो दोनों बूथ में लूट चल रहा है, छापा चल रहा है। ये पकड़ने के लिए तो शुभेंदु अकेला ही गया है। तो वो जब जाता तो मोटिव जब कुछ मोटिव था, वो लोग का सिक्योरिटी है, आर्म फोर्स है, उसका पास 3-4 रिवॉल्वर है, तो फायर करके भाग जाएगा। सबाजपुर 21 ब्लॉक की सबाजपुर साउथ कांठी की कंस्टिट्यूंसी के अंडर में वो इलेक्शन एजेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी के ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से उनको खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वो लोग रेगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। पहले फेज में ऐसा हुआ, देखिए और भी दूसरा पार्टी का कैंडिडेट सुशांत घोष फ्रॉम सीपीआईएम पार्टी एट गोडबेता, उनको भी जैसे किया गया आज, बहुत दुखद बात है। बीजेपी ने आरोप टीएमसी पर लगाया, लेकिन टीएमसी का कहना है बीजेपी खुद ये खेल कर रही है। आखिर बंगाल में क्यों हो रही है सियासी हिंसा, इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं जे न्यूज संवाददाता सबसाची। पहले चरण के दौरान ही अलग अलग जगहों से हिंसा की वारदात सामने आई है। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सोमेंदु अधिकारी के गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने यह कहा था कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हालांकि हमले के वक्त सोमेंदु अधिकारी खुद गाड़ी में मौजूद नहीं थे,
उनके ड्राइवर मौजूद थे जिसके साथ मारपीट की गई। दूसरा घटनाक्रम आपको बता दूं कि पश्चिम मेदिनीपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी साल्बोनी में सीपीआईएम के कैंडिडेट सुशांतो घोष के ऊपर भी हमला किया गया। वो जब गाड़ी से उतरे तब कुछ लोगों ने उनके गाड़ी को घेरा, जिसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की और पत्थरबाजी भी की गई और मौके पे मौजूद सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस ने मामला संभाल लिया। हालांकि सुशांतो घोष ने यह कहा है कि ये हमला टीएमसी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद टीएमसी और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल काफी गर्म हो चुका था। तीसरा घटनाक्रम आपको बता दें कि 30 साल के युवक ने बेगमपुर में उसकी मृत्यु हो गई और वो फांसी में लटका हुआ पाया। तो पहले चरण के मतदान के दौरान हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं और वोटिंग बम्पर हो रही है। फिलहाल इंडिया रिपोर्टर में